So welcome to my channel Chemistry Foundation Academy. So last video we discussed about the thionyl chloride, the reaction with thionyl chloride, that is by the action of thionyl chloride we prepared alkyl halide. So actually this method is also known as Darjan's method. So what happens actually in this reaction, we just repeat it, है ना. So suppose here alcohol is there, CH3CH2OH ethyl alcohol plus SOCl2 in presence of pyridine. Okay, we already discussed here. So CH3CH2Cl plus SO2 plus HCl. So which we already discussed here, since SO2 and HCl is gas, so that's why it can be removed out easily. So therefore the alkyl halide is the only product, this one is the only product. So for this reason this one is the best, for this reason this method is the best method for the preparation of alkyl halide. Okay, so now we just again suppose if we use it in place of SOCl2, if we use SOBr2. So if we use SOBr2, then the product will be what? CH3CH2Br. So this is unstable. So if we use SOBr2, it produces unstable product. So that's why we do not use this one, SOBr2. Similarly, SOI2, it does not exist. So for this reason, we only use this one. SOCl2. So SO2Cl2, that is thionyl chloride, is only used in this reaction. Okay, so SOBr2 is unstable and this one also does not exist. Clear? Now it's okay. Now we go fastly on another method. Like next method is that is by halide exchange method. Halide exchange method. What do you mean by halide exchange method? Means exchange of halides. That is, exchange of halides means chloride ion or bromide ion can be exchanged by iodide ion. So that's why it is called halide exchange method. Suppose, as for example here, if you use CH3CH2Cl or CH3CH2Br and it reacts with NaI, so in presence of acetone, this one, so what it produces? So it produces iodide, that is ethyl iodide, CH3CH2I. Here also CH3CH2I, and along with what it produces? NaBr. This is also here NaBr. So this product will produce. So this method is known as halide exchange method, and this reaction is also called Finkelstein method or Finkelstein reaction. Okay, is it clear? Now if we use in place of, if we want to use in place of iodine, we want to use fluorine. So if we want to produce alkyl fluoride, then what will happen here? So suppose if we use CH3CH2Cl and AgF, this, or CH3CH2Br and AgF, silver fluoride, then here we produce CH3CH2 this fluoride
or here also that is fluoride, this one, and AgCl here, similarly AgBr, like this. Okay, so this is the best method to produce fluoride, alkyl fluoride. So this method can be used for the preparation of alkyl fluoride, like ethyl fluoride or methyl fluoride or propyl fluoride, whatever. So it's alkyl fluoride, the preparation of fluorides, so by the reaction with silver fluoride, or we can use Hg2F2, this one. So this can be also used, or you can say that these two, that is AgF and Ag2F, these two are important, Hg2F2. So by these two, either you take AgF or Hg2F2, so it produces fluoride, alkyl fluoride. Okay, so this reaction is called, what this reaction actually? So this reaction is known as SWARTZ, SWARTZ, this reaction. So in this reaction, actually alkyl fluorides are produced. Okay, now it's clear. Now we again proceed another method. So that's this method is known as, that is Hunt-Dekker reaction. So this is the by the action of next method, that is by the action of silver salt of fatty acid, silver salt of fatty acid, this one. So by this action of silver salt of fatty acid, so we use it, like suppose we take silver salt of fatty acid, means what? CH3COO, this one, this is silver acetate, this is also called silver salt of fatty acid. So this one, that is silver acetate, silver acetate. Okay, so when it reacts with this one, suppose when reacts with bromine Br2 in presence of, that is CCl4, carbon tetrachloride, it means that it's by refluxing of carbon tetrachloride with bromine. So this silver salt or silver salt of fatty acid, so reacts and produce, what it produce? CH3 and Br, another product CO2 plus AgBr. So clear? Understood? So this reaction actually known as, this reaction is, what this reaction is called? This reaction is called Hunt-Dekker reaction. Okay, clear? So by refluxing of CCl4 and Br2, so silver salt of fatty acid, when we use it, then it's a methyl bromide. If we use here CH3, CH2, COO, Ag and Br2, here also the same product here, that is CH3, CH2, Br, that is ethyl bromide, here methyl bromide, here ethyl bromide, CO2 and silver bromide. So both are the same process. Okay, so but thing is that only bromide, here only bromide, that is alkyl bromide is produced here only, that is only alkyl bromide produced in this reaction. Okay, so if you want to alkyl iodide, it's not possible through this reaction, so only alkyl bromide is possible. So let's see how. So if suppose in this reaction, suppose we use it in place of bromine, so we use it iodine. Suppose just I take CH3COAg and plus
iodine, in presence of same condition is same. Okay, so what it produce? So here alkyl iodide cannot be produced. Here what it produce? It produce ester. So ester is produced, CH3 COO CH3, that is ester. Here in this reaction ester will be produced in place of bromide or iodide. So alkyl iodide not possible here. If we use iodine in this condition, so ester will produce. Okay, so now again in this reaction CO2 plus Ag byproduct is this one. Okay, is it clear now? Now, so that's the difference here. So be careful of about these two reaction. So if now again question is arise, if R is third degree, if we use R is third degree use, if in this condition, so what will happen? Okay, if R is 3 degree, then what will happen? What product it will produce? Suppose just I take it here, third degree R, 3 degree R, that is CH3, C, CH3, CH3, now C double bond O, here O, Ag. So this one is the third degree silver salt of fatty acid. So third degree R is alkyl is third degree, 3 degree. So what will, if we use here iodine, so what it produce? Okay, even if we take bromine in place of not iodine, take bromine, so we follow this method here. So is it produce same product? No. Here in this reaction, this alkyl bromide would not be produced. Here the different product will produce here. So what product? Actually here alkene produce. Alkene. The major product will be alkene. So what you can see here, that is if we use it, just again I rub it, if we use 3 degree alkyl, then you can see it here, that is this one, this and this, and we use bromine, this method. So only we use in place of this, we use this one, 3 degree R. So here ethene will produce, means CH2 double bond here come C and CH3 and CH3. This product will produce here. Okay, that is alkene. So alkene here produce. So again the product will be different as compared to this. So be remember about it, be alert about this. So what the difference between these two reaction? If this one take 3R, then that is 3 degree. If we take R is 3 degree, then the product will be different, alkene, in place of alkyl bromide. If we take iodine, again the product will be different. Here product will be ester. Okay, in this condition. So clear? That's the difference of 3 reaction. Okay. So this reaction, actually what this reaction is known as, silver salt of fatty acid, that is this reaction is known as Horns-Dicker reaction. Oh, just wait. Horns-Dicker reaction. Now it's clear. So all these we discuss about the different methods for the preparation of alkyl halide, that is from alkene, from alcohol, now from silver salt of fatty acid. Okay, so there are different methods. Now we again proceed for that is some questions we just discuss here now.
So what were the questions, basic questions we discussed on the basis of alkyl halide. So let's see what are the possible questions. So like suppose first question, this one cyclohexanol, this one is called cyclohexanol, this one, and what product is produced if we react with bromine. Just wait, not in place of bromine we write SOCl2, this thionyl chloride. So this one is the question, first question. Second question, this one question number 1. Second number question, what product will produce if we take this one, that is CH2CH3, that is ethyl and NO2. So this one is called 1, 2, 3, 4 ethyl nitrobenzene, that is 4 ethyl nitrobenzene. So this 4 ethyl nitrobenzene when reacts with bromine in presence of UV light. So what product will it produce? This is the question. Next question. Now third number, what will be the major product? What will be the major product? What will be the major product in this reaction? Suppose I take this reactant here. If this one, you know that this one, that is this plus, if we react with bromine in presence of this UV light, okay, so you can write here also, that is Br. So what product here produce in this reaction? What is the major product will produce here also? So these three questions, again you can take another one. So it's not placed here, again later on just we will discuss here. So this is the question, so which we already discussed here. If we see the question, the answer will be, what will be answer here? So the answer will be here, first one, that is the product will be here what? Cl. The product will be Cl plus SO2 plus what? HCl. This is called, what it is called? Chlorocyclohexane. This one is called chlorocyclohexane. Cyclohexane. This product will produce here. Same method is which we already discussed here with by the action of thionyl chloride. This is alcohol here. Okay. Now in this reaction, if we use it here, the answer will be what? So answer will, the product will produce here in this reaction, the product will produce like this product, that is CH2. So here this abstracted hydrogen becomes subtracted, and here this Br is substituted by this Br substituted here due to abstract hydrogen. Here it produce, here the product will be produced like this, that is NO2 here. So this benzylic free radical, you can say that benzylic free radicals are stable and this hydrogen is subtracted. For this reason this bromide is substituted here in this place. So in this condition the product will, what will product produce? क्या यहाँ पे product होगा? तो ये product जो है जब 4 ethyl nitrobenzene रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ये आएगा. ये प्रोडक्ट, अब इसका नाम क्या है देखिए, तो 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे आ रहा है, फिर इसका एक ब्रांच गया है, तो ये हमारा एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है ना. तो ये हमारा आएगा 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 पे ब्रांच गया है 1 ब्रोमो और मिथाइल, ये मिथाइल, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा. एंड इसके बाद क्या आएगा? नाइट्रो
नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे हुआ, ये आंसर होगा इसका। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप का इक्वेशन और हमारा रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है। ये अल्काइल हैलाइड बेस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म, जितने भी मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक का मैक्सिमम 90% मैकेनिज्म यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसीलिए ये जो अल्काइल हैलाइड है ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर अल्काइल हैलाइड की पूरी अच्छी तरह से इसके सारे मैकेनिज्म अगर हम लोग यहाँ कवर कर लें तो मैक्सिमम पार्ट अल्कोहल है, फर्दर जो भी चैप्टर है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम लोग फिर इजीली उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म है ये यहाँ पे इस्तेमाल यूज़ होता है अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अल्काइल हैलाइड। तो इस जगह देखिए, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट विल बी, क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्या मेजर प्रोडक्ट होगा अगर हम लोग इसको हटा देते हैं। देखिए ये जैसे हम लोग लिए थे, डिस्कस किए थे यहाँ पे, ये अगर है और ये ब्रोमीन लेते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, या फिर इसको यूँ हटा के यहाँ डाल देते हैं यूवी लाइट में ब्रोमीन और यहाँ पे यूवी लाइट, अगर इसको लेते हैं इस केस में भी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, मोर और लेस सिमिलर दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हमारा प्रोडक्ट होगा, अगर इस फॉर्मेट में है तो हमारा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे हमारा ये जो बी आर है यहाँ जुड़ जाएगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर यहाँ पे हम दे देते हैं HCl, तो यहाँ क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या बनेगा। इस केस में देखिए, इस केस में अगर देखें तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह से बनेगा, यहाँ Cl, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको थोड़ा सा यूँ लगा दें, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, और क्लियर, आया समझ में। एक्चुअली है क्या ये, देखिए अगर इसको हम डिटेल में देखें तो एक्चुअली में है क्या ये, किस तरह से इसको हम समझेंगे दूसरे रूप में। देखिए इसको हम समझते हैं हम लोग। ये जो है हमारा इस तरह से दिया हुआ है, ये अगर रिएक्टेंट है और ये इसका नेमिंग क्या होगा हमारा, इसका नेमिंग है एक्चुअली में ये इस तरह से गया है। इसका मतलब है यहाँ CH3 है, यहाँ पे हमारा ये CH3 है, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, CH होगा, और फिर इस जगह में CH3 है और ये हमारा गया है CH3, ये है, ये इस तरह से हमारा जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आ रहा है समझ में। हमारा प्रोडक्ट इस तरह से आएगा क्या, तो अगर हम ये फॉलो करते हैं BR को UV लाइट में, तो मेरा प्रोडक्ट हो गया CH3 CH, ये हमारा इधर गया है, ये H भी हट जाएगा, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे गया CH3 और यहाँ पे हम ले लिए सपोज BR यहाँ पे, और ये हमारा हो गया CH3। दैट इज, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, ये इस तरह का प्रोडक्ट बना। यहाँ BR ले लिए, सपोज यहाँ पे हम BR ले लेते हैं और यहाँ पे हम CH3 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 ले ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो क्या प्रोडक्ट बना, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज BR, चूँकि इस फॉर्मेट में है। ठीक है, ओके देन, ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन था। अब आ जाते हैं हम लोग अगला आगे की ओर पढ़ते हैं। चूँकि हम बताएं जैसे अल्काइल हैलाइड जो है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म बहुत सारे हैं और जो कि सबके सब इम्पॉर्टेंट है ना। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारे रिएक्शन एंड मैकेनिज्म हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड में यूज़ होगा। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम लोग अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है? पहला पॉइंट है हमारा डेंसिटी। ये डेंसिटी पे क्या है इसका प्रॉपर्टीज़ वाइज, क्या इसका अल्काइल हैलाइड का प्रॉपर्टीज़ शो करता है? तो डेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है, फ्लोरीराइड क्लोरीन अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, हल्का होता है, लाइट होता है। ये क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है। अगर हम देखें जैसे ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन ये लाइटर होगा देन वाटर, लाइटर देन वाटर। इसीलिए क्या होता है, ये फ्लोट करता है। सो इट फॉर्म फ्लोराइड और क्लोराइड फॉर्म अपर लेयर, ये अपर लेयर पे फॉर्म करेगा, लेयर ऑन वाटर, ठीक है। ये फ्लोट करेगा। इसका डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, लेस डेंसर, दैट इज लेस डेंसर। इसका डेंसिटी कम होगा, लेस डेंसर देन वाटर, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन का बात करें तो ब्रोमीन और आयोडीन में क्या आएगा, ये इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर हम ब्रोमीन एंड आयोडीन का बात करें तो ये हमारा डेंसर होगा। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट इन लोअर लेयर, ये लोअर लेयर में रहेगा, ठीक है। दैट इज ये डेंसर होगा, डेंसर ये होता है, ठीक है। अब अगर इसको और डिटेल में जाने तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर हमारा इस तरह से है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम, ये आपको मालूम है हैलोजन जो है ग्रुप 17 में आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका क्या होता है, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों के कम होगा, इधर स्ट्रांग होते जाएगा और इसका डेंसिटी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका ऑर्डर वाइज देखें, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अल्काइल आयोडाइड का ज़्यादा होगा, अल्काइल ब्रोमाइड का उससे कम, अल्काइल ब्रोमाइड का उससे कम होगा। उसके बाद वाटर का होगा, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं अगर वाटर से तो ये आएगा। इसके बाद आएगा हमारा दैट इज़ अल्काइल क्लोराइड RCl, और इसके बाद आएगा F फ्लोरीन, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर इसका रहेगा, ठीक है। अगर हम दूसरे रूप में देखें, नेक्स्ट ऑर्डर देखिए, अगर हम CCl4 लेते हैं, ये भी एक तरह का अल्काइल हैलाइड है, टेट्राक्लोरोमीथेन है। ये इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CH-Cl3। एक और बढ़ा देते हैं, इसका डेंसिटी क्या होगा, इसके कंपेयर में कम होगा, ठीक है। अगर और देखिए यहाँ पे, दैट इज इससे कम होगा CH2Cl2, और इससे कम होगा, अगर हम लेते हैं यहाँ पे वाटर डाल देते हैं, ठीक है, CH3Cl। अब आएगा सबसे कम आएगा यहाँ पे CH3Cl। ये हमारा ऑर्डर ऑफ डेंसिटी होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि क्लोरीन बढ़ते जा रहा है, क्लोरीन का नंबर आप बढ़ते जा रहा है, इसका डेंसिटी बढ़ रहा है। तो 2 क्लोरीन आया, 2 3 4, तो इसका डेंसिटी हमारा ये मोर देन वाटर से ज़्यादा होगा ये, और इसका डेंसिटी कम होगा, ठीक है। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अल्काइल हैलाइड का, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये भी डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का ये सेम पैटर्न में आएगा हैलोजन में। अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट
तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में इसका ज़्यादा होगा, Br कम होगा, फिर Br से कम क्या होगा, Cl होगा, फिर फ्लोरीन होगा। अगेन वही उसी मेथड को फॉलो करना है, दैट इज फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऊपर से जैसे फ्लोरीन से हम आयोडीन की ओर जाएंगे तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब बढ़ेगा मतलब ये सबसे ज़्यादा होगा और ये कम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन से आयोडीन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ सबसे कम होगा, मतलब यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर फिर से इसका देखें बॉइलिंग पॉइंट में केस में, तो हमारा अगर इसमें देखते हैं CCl4, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, CHCl3 के कंपेयर में। फिर अगर इसका देखें CH2Cl2, और फिर हमारा अगर इसमें देखें तो ये हमारा होगा CHCl3। इस तरह से ये हमारा इसका ऑर्डर आ जाएगा CHCl3। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये ऑर्डर ऑफ हमारा बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे हमारा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ CH3Cl होगा, एक एक H बढ़ रहा है, क्लोरीन कम हो रहा है। तो जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एज नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ एक है, 1 से 2 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फिर 2 से 3 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 3 से 4 बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब रीज़न क्या है, ड्यू टू व्हाट, इंड्यूस्ड डायपोल। सो डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल के कारण ये हमारा होता है, ड्यू टू इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल इंक्रीज होता है, इंड्यूस्ड डायपोल। जब क्लोरीन एटम इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड डायपोल भी बढ़ेगा और इसके कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी समझ में आ गया। और अगर हम इस तरह से लेते हैं, मान के चलिए कि अगर आप ब्रांच बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ RI था, यहाँ RBr है, यहाँ RCl है, यहाँ R फ्लोरीन है। अगर हम यहाँ पे R को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ CH3, सपोज यहाँ सब में हम एक ही ले रहे हैं Cl, ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रांच बढ़ा दें, अगर हम यहाँ ब्रांच बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम CH3, देखिए इसको थोड़ा सा समझना होगा कि अगर हम यहाँ ब्रांच दे रहे हैं CH3C और यहाँ एक दे दिए हैं CH3, यहाँ HCl, ये डालें, फिर एक और ब्रांच बढ़ा देते हैं CH3C, यहाँ पे H हटा दे रहे हैं, यहाँ CH3, फिर CH3 और Cl। तो ये तीनों में हम क्या देख रहे हैं, क्लोरीन एटम है, लेकिन ब्रांच मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा ब्रांच इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एज द नंबर ऑफ R का, दैट इज अल्काइल ब्रांच, इंक्रीज, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट घटते जाएगा। क्योंकि जब ब्रांच बढ़ेगा तो ये जो इंड्यूस्ड डायपोल है इसका इफेक्ट हमारा कम होते जाएगा, है ना। और यू कैन से दैट, आप बोल सकते हो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका इफेक्ट को कम करते जाएगा, ये नंबर ऑफ ब्रांच जब इंक्रीज करेगा। तो इस केस में हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम होते जाएगा, मतलब ये ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा कम ये होगा और सबसे कम ये होगा। तो ऑर्डर हमारा इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग डिस्कस किए, बॉइलिंग पॉइंट का जो भी प्रॉपर्टीज था क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है क्या प्रॉपर्टीज किस बेस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में क्या है कि ये चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दोनों का चार्ज और डिस्टेंस दोनों का कितना है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता है, इसी को डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में सिंपली है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा डायपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो एटॉमिक साइज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये साइज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब साइज बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो इस कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, इसका, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इस केस में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू, अगर यहाँ देखें तो ये यहाँ इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम और सबसे कम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट हमारा कैसा होगा, आर, ये इसका ज़्यादा होगा, आर बी आर, फिर आर सी एल और आर एफ, यहाँ सबसे कम होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है किस पे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये चार्ज इनटू डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो आपका डायपोल मोमेंट भी आज कंप्लीट कर दिए। अब जो आएगा इसमें नेक्स्ट जो है सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। लास्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है, ये आसान है सॉल्युबिलिटी। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हाइड्रोजन में डिसॉल्व होता है, घुलता है, मिसेबल होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है कि अल्काइल हैलाइड जो है बेसिकली हमको दिखाई दे रहा है पोलर है, हमको दिखाई देता है, मालूम पड़ता है सॉल्युबल है। एक्चुअली ये क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल, ये हमारा इनसॉल्युबल होता है, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये जो जनरल कॉमन जो रूल है इसको यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है और जब अल्काइल हैलाइड हम उसको यूज़ करेंगे, अल्काइल हैलाइड मिक्स करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो क्या करेगा, इट अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, हमारा इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को अच्छी तरह से देखिए कौन कौन सा चैप्टर आपका है, स्पेशली अल्काइल हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले आने नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रहेगा, उसमें आपका इक्वेशन मैकेनिज्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे आपका आगे का जो चैप्टर्स है वो आसान होने वाला है। तो स्टूडेंट बी अवेयर इट, एंड स्वाभाविक है ऑल्सो हमारा जो चैनल है मेरा वो दैट इज़ केमिस्ट्री फाउंडेशन एकेडमी, उसको सपोर्ट करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। जब भी एक नया वीडियो मेरा आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है।